السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے جس کی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمارا اسٹیٹس بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امتیں بہت ساری ہیں، ہم سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کی قومیں گزری ہیں، ان کی امتیں بھی رہی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا نظام بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتوں میں سب سے بہترین امت ہم کو اور آپ کو قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا۔ اس میں یہ ہے کہ تم بھلی بات کا حکم کرتے ہو، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور تمہاری حقیقت یہی ہے کہ اس بھلائی کے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور تؤمنون باللہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے کہ جانتے ہیں ماں باپ کی پیٹ سے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیدا ہوئے، بچپن سے ہمارے کانوں میں اذانیں دی گئی، اللہ اور رسول کا نام پڑھا گیا، سنایا گیا، اور ہم نے اہل ایمان کی جیسی زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو دیکھا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ خیر امت کا لقب اس امت کو دینے کے لیے کیا بنیادیں بیان فرمائی ہیں؟ اور سب سے امتیازی اور بنیادی بات، سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ حالات جو آج کے زمانے میں جو ہمارے حالات ہیں، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیتوں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت امت کی جو حالت ہے اس میں بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین خرابی یہ ہے، بگاڑ اور فساد یہ ہے امت کے اندر کہ آپس کا اتحاد اور اتفاق بالکل معدوم سا ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بہت خطرناک نتیجے بیان فرمائے ہیں، وہ جو ہم اپنی آنکھوں سے آج اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ کیا حالت ہو گئی ہے ہماری، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم یہ غلط کام کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا تھا کہ اے ایمان والو،
अगर तुम दुश्मन से तो कभी मुठभेड़ का मौका आ जाए, मुकाबले का मौका आ जाए, फस्बुतू, जमे रहो, साबित कदम रहो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत के साथ याद करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की इताअत करो, अतीउल्लाह व रसूलहू, उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़अू, आपस में झगड़े मत करो। फतफशलू, नतीजा क्या होगा कि तुम कम हिम्मत हो जाओगे, हार जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उड़ जाएगी, तुम्हारी हैबत दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगी। वस्बिरू, सब्र करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या दोस्तों हम ये महसूस नहीं करते हैं, मुशाहिदा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर आपस में तनाज़े, झगड़े और निफाक, शिकाक, जिदाल, ज़बान पे कुछ, दिल में कुछ, ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, एक दूसरे के ऊपर बेएतमादी और उसके असबाब खुद फराहम करना, आपस के झगड़े, खानदानी झगड़े, एक दूसरे की तरक्की से देख के जलना, हद ये कि दूसरे अपने खानदान के लोगों को ऊपर आता हुआ, तरक्की करता हुआ देखना हमें पसंद नहीं आता। हसद में मुब्तला हो जाते हैं, जलन में मुब्तला हो जाते हैं और खुदा न खास्ता उनको नीचे गिराने की कोशिशों में लग जाते हैं। ये जो कैफियत होती है ना, फरमाया यही बुनियाद है तुम्हारे माशरे के अंदर वो जो बेहैसियत की हो जाएगी, तुम हार जाओगे, तुम्हारी हार का सबब होगा आपस के जो इख्तिलाफात हैं, तनाज़े हैं, झगड़े, चाहे वो मजहब की बुनियाद पे हो, मसलक की बुनियाद पे हो या और दूसरे दुनियावी मामलात की वजह से हो, झगड़ा इस्लाम में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। फरमाया ईमान वाले वो होते हैं कि जो आपस में एक दूसरे के साथ इंतहाई रहमदिल होते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में वो सख्त हुआ करते हैं। लेकिन हो गया क्या कि अल्लाह के दुश्मनों से तो दोस्ती है और ईमान वालों से और अपने ही करीबी लोगों से हमें हसद है, दुश्मनी है, जलन है और झगड़े छोटी छोटी बातों पर, मसलों की बुनियाद पर। और इसका नतीजा ये है कि हम कम हिम्मत है, हर जगह हमारी हार, और दुश्मनों को अच्छी तरीके से इस बात का पता चल गया है कि ये फैली हुई उम्मत तो है बड़े इलाके के अंदर, दुनिया के बड़े खित्ते के अंदर, लेकिन ये समंदर के सैलाब के ऊपर आने वाले झाग की तरह है। कोई इसके अंदर वेट है, ना वजन है, ना कोई इसकी कोई अहमियत है। कहीं से भी छोटी सी कोई चीज डाल दो, ये बिखर जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, आपस के झगड़ों का शिकार हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, आपस के छोटे छोटे मफादात के लिए कौमी और मिल्ली मफादात को कुर्बान कर देंगे और बदनाम कर देंगे मिल्लत को। मिल्लत बदनाम हो जाए कोई परवाह नहीं, अपना मफाद पहले पूरा हो जाए। ये हालत हो रही है दोस्तों हमारी, बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो हमारा नक्शा पेश फरमाया है वही हालात हमारे अंदर है। तो इसलिए इससे बचने के लिए अल्लाह और रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, नुस्खा दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की फरमाबरदारी करो। ऐसी फरमाबरदारी, ऐसी इताअत, ऐसी फरमाबरदारी जिसका नतीजा ये हो कि तुम्हारे आपस के झगड़े, आपस के इंतशार ये खत्म हो जाए। ऐसी इताअत, क्या आप किसी से इख्तिलाफ में हो और आपको अल्लाह का वास्ता दे दिया जाए, अल्लाह का हुक्म सामने बता दिया जाए, क्या आप अपना झगड़ा अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं? हम और आप छोड़ देते हैं? ये गौर करने की जरूरत है। अपने अपने जो मुतालिबात हैं उससे पीछे हट जाते हैं? नहीं, ऐसा कैसा, अपना करीबी भाई भी है, मीरास के मसाइल, आपस में झगड़े, जायदादों की तकसीम के लिए झगड़े, कारोबार में मामलात में झगड़े और बहुत सारे लेन देन के मामलात में झगड़े, खानदान के मामलात में झगड़े, रिश्ते नातों के झगड़े और औरतों के अंदर सास बहू ननद भावज के झगड़े, कैसे कैसे झगड़े। जब ऐसे झगड़ों की नौबत आती है और उसमें अल्लाह का वास्ता देके कहा जाता है कि भाई अल्लाह का हुक्म ये है, इसमें आप
آپ नाहक पे हैं, हक पे आइए, अल्लाह की फरमाबरदारी पर आइए। क्या हम अपने मुतालिबे को अल्लाह के हुक्म के आगे पीछे कर देते हैं? अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, अपने मुतालिबे से दस्तबरदार हो जाते हैं, जबकि पता चल जाए साफ तौर पे कि हमारा ये हक नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। कुरान की रोशनी में अल्लाह का हुक्म इसके खिलाफ है, हमारे सामने बात आ जाती है कि हम पीछे हट जाते हैं। पता चल जाता है कि लड़कियों का भी हक है मीरास में, वालिदैन की जायदाद में अपनी बहनों का भी हक है। पता चल गया, नहीं मालूम था, झगड़ा कर रहे थे, मालूम हो गया, क्या पीछे हट जाते हैं और उनका हक देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ईमान सलामत है, इताअत का दावा दुरुस्त है, हम अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, रसूल की इताअत करने वाले हैं। लेकिन अगर हम पीछे नहीं हटते, उसमें तरह तरह की मुबालगा आराइयां करते हैं, उसमें मुशिगाफियां करते हैं, उसमें अपने अजीब गैर जरूरी के बहस मुबाहिसे करते हैं और कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, अदालतों में जाके अपने खानदानों को बदनाम करते हैं, तो फिर हमारा ये जो इम्तिहान है ना, ये इसमें अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत के जो दावे हैं, अल्लाह से मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत के जो दावे हैं, वो खुल के समझ में आ जाते हैं कि कौन दावे में सच्चा है, कौन झूठा है, समझ में आ जाता है। इसी तरह छोटी छोटी बातों पे, मस्जिदों की इंतजामियाओं में झगड़े, ओहदों के लिए झगड़े, किसी सोसाइटी का सदर बनने के लिए झगड़े, इसमें भी जब हक सामने आ जाता है तो क्या महज अपनी अना के खातिर हम सामने रहते हैं, या बात सामने आ गई कि हम नाहक पे हैं तो पीछे हट जाते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं मुतालिबे से? ये देखने की जरूरत है। फरमाया अल्लाह ताला ने, ला तनाज़अू फतफशलू, झगड़े मत करो, तुम हार जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये हो रहा है ना दोस्तों, आंखों के सामने है, ये हमारा हाल हो चुका है माशरे के अंदर। इसका नतीजा ये है कि गैरों को हिम्मत आ चुकी है, वो यहाँ तक आ चुके हैं कि अल्लाह के ऊपर, दीन के ऊपर, रसूल के ऊपर और हमारे निज़ाम, हमारी मुआशरत के अंदर जो बिल्कुल हमारे प्राइवेट मसाइल हैं, जो पर्सनल मसले हैं मुसलमानों के, उसमें भी लोगों को अपनी राय देने और अपनी मुदाखलत करने का मौका हमने खुद अपनी हरकतों से फराहम किया। तो दोस्तों, इसकी जरूरत है। ये मैं सिर्फ एक चंद मिसालें पेश किया हूँ, आप गौर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अल्लाह और रसूल के अहकाम हैं और कहाँ हमारी अपनी ख्वाहिशात का जहाँ टकराव होता है, और वहाँ हम अल्लाह को, उसके रसूल को सामने करते हैं, इताअत का मामला करते हैं, तो हम यकीनन अपने दावे में सच्चे हैं। और अगर हम अल्लाह और रसूल को पीछे कर देते हैं, अपनी राय को, अपनी ख्वाहिश को आगे करके लड़ाई झगड़े में अड़े रहते हैं, तो समझिए कि वहाँ हम अल्लाह और रसूल की इताअत के दावे में झूठे हैं, खोखले हैं, और उसका नतीजा वही निकलेगा जो अल्लाह ताला बयान फरमाया है। चुनाचे ये तो हम अपनी मुआशरे की सतह पे देख रहे हैं, बैरुल अक़वामी सतह पर भी आप देख लीजिए इस वक्त जो मुसलमानों का हाल फलस्तीन में हो रहा है, जो कुछ हालात उनके साथ पेश आ रहे हैं, और मुसलमानों ने उन मुसलमानों से इख्तिलाफ की बुनियाद ये थी, ये उन मुसलमानों से जो वहाँ पर जिद्दोजहद कर रहे हैं, उन मुस्लिम हुक्मरानों के इख्तिलाफ की वाहिद बुनियाद ये है कि वहाँ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो जिंदगी के तमाम मामलात के ऊपर हावी है। हमारी सियासत, हमारी हुकूमत, हमारा मैनेजमेंट, हमारा हुकूमती निज़ाम, ये सब कुछ अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। और मुस्लिम हुक्मरान जो खुद बन के बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम जो तय कर दिए बस हम थे, हमारे बाद हमारे बेटे हुक्मरान होंगे और हमारी अपनी मनमानी यहाँ पे चलेगी। और फिर वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने मफादात को बचाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के जो है इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इतना जुल्म करके दबा के रखे हुए हैं, जितना कि वेस्ट के लोग भी अपने लोगों को नहीं करे हुए हैं। वहां पे तो फिर भी हमें आजादी महसूस होती है। अभी जो आप देखे होंगे कि जो मुसलमानों की, जो मजलूमों की मदद करने के लिए जो कारवान चला है, उसमें जो ज्यादातर लोग जो है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें अगरचे मुस्लिम मुल्कों के भी लोग शामिल हैं, लेकिन उन मुल्कों के अंदर उन लोगों के साथ गिरफ्तारी या उन लोगों के साथ जो सख्ती हो रही है, उसके ऊपर जो आवाज बुलंद की जा रही है, जो एहतजाज हो रहा है, वो उन मुल्कों में ज्यादा हो रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिसको हम आमतौर पर इस्लाम मुखालिफ समझते हैं।
اور करते भी हैं, वहाँ की हुकूमत में उनकी पॉलिसी भी है, लेकिन अवाम के अंदर जो शुऊर है, जो एहतजाज करने की जो उनके अंदर जो कैपेसिटी है, आवाज बुलंद हो रही है, वहाँ ज्यादा हो रही है बनिस्बत मुस्लिम मुल्कों में। क्यों? अब इसकी वजह यही है कि यहाँ के लोगों ने अदल और इंसाफ के बजाय आपस के इंतशार की वजह से इतना जुल्म ये बदमाश हुक्मरान करते हैं कि आवाज उठाने वाले को, उसके खानदान को ऐसा गायब कर देते हैं कि कोई उसकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं, उसका नामो निशान मिलना मुश्किल हो जाता है और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। नतीजा ये है कि सन्नाटा सा छाया हुआ मुस्लिम मुल्कों के अंदर। और ये हालात, इसमें कुरान मजीद की आयत हमें रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अफतुमिनून बिबअदिल किताब व तकफुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। अब क्या तुम लोग अल्लाह की किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का इनकार कर देते हो? दीन को अपनी मुआशरत में आप मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासत में आप दीन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तुमिनून बिबअदिल किताब, अल्लाह की किताब के एक हिस्से को तो तुम मानते हो, व तकफुरून बिबअद, दूसरे हिस्से का इनकार कर देते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो ये हरकत करेगा उसका बदला सिवाय इसके और क्या होगा? इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई उसका मुक़द्दर होगा। व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन वो बदतरीन और बहुत ही सख्त तरीन अज़ाब की तरफ वो पलटाए जाएंगे। वल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह को गाफिल हरगिज़ मत समझो। जो कुछ जालिम लोग ये कर रहे हैं अल्लाह उनसे भी गाफिल नहीं है। जो हम लोग अपने अल्लाह और रसूल की शरीयत के साथ जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उससे भी गाफिल नहीं है। एक तरफ वो जालिम है, दूसरी तरफ हम भी जालिम हैं। हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे अपने नबी के साथ वाबस्तगी के इजहार को, नबी से मोहब्बत के इजहार को बाद लोग जुर्म बनाकर उन लोगों को हथकड़ियां पहना रहे हैं, जेलों के अंदर डाल रहे हैं। एक तरफ ये आलम है, दूसरी तरफ ये हाल है कि हम अपने नबी से जो वाबस्तगी होने का जो हकीकी मकसद था, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? क्या वो वाबस्तगी हमारी हकीकी मानों में है? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तौर पर इस मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये भी गौर करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार अपनी जगह बेहद दुरुस्त है और उसकी अहमियत है, लेकिन उसके इजहार के साथ साथ अपनी अमली जिंदगी में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली सबूत देना होगा। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी मिसाल से बात को समझाया है। एक उस्ताद होता है, उसके पास बहुत से शागिर्द होते हैं, क्लास में टीचर होता है, उसके पास बहुत से स्टूडेंट होते हैं। हर स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो बोलता है कि मैं फुला अच्छे से जो उस्ताद है ना, टीचर है, मैं उनका शागिर्द हूँ। हर कोई दावा करता है मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। लेकिन टीचर से पूछा जाए कि तुम इतने स्टूडेंट हैं, तुम्हारे 25-30 स्टूडेंट तुम्हारे हैं या 50-60 स्टूडेंट तुम्हारे हैं, इसमें से तुम्हारे जो है आप किसको सही मानों में अपना स्टूडेंट समझते हैं? कौन आपकी नजर में लायक है, कौन आपकी नजर में हकीकी आपका शागिर्द है, जिसको टीचर निशानदेही कर दे, बोले ये हैं कि जो मेरे हकीकी शागिर्द हैं, वही हकीकत में जो है बहुत बड़े और वो हकीकत में अपने आप को शागिर्द कहलाने के लायक होते हैं। जिसकी उस्ताद की नजर में हकीकत में जो है उसकी शागिर्दी मुअतबर है, वही हकीकत में दावा कर सकता है उसका शागिर्द होने। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें वाबस्तगी है। हम सब दावा तो करते हैं कि हम हुजूर से वाबस्ता हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में वही अल्लाह की नजर में मोहब्बत करने के दावे में सच्चा है कि जो जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला खुद बता दे कि ये है हकीकी मोहब्बत करने वाला। और कौन होगा वो जो अल्लाह और रसूल के हुक्म आ जाने के बाद अपनी मर्जी न चलाए, अल्लाह और रसूल के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दे, अपनी मर्जी छोड़े, अल्लाह और रसूल की मर्जी को अपनाए। शादियों में गैर जरूरी खर्चा करना है, इख्तियार है, पैसा है, अल्लाह ने दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन अल्लाह और रसूल को पसंद नहीं है। आदमी अपनी पसंद को अल्लाह और रसूल की पसंद के आगे छोड़ दे, वो है हकीकी मानों में हुजूर से मोहब्बत करने वाला। इसी तरह और बहुत से मामला हैं।
हर मामले में हम अपने आप को इस उसूल के मुताबिक जांच के देखें कि क्या हम अपने दावे मोहब्बत में सच्चे हैं या नहीं। जिसको अल्लाह और रसूल एनओसी दे दे और उसको बोल दे कि ये है हकीकी मानों में मेरा चाहने वाला और मोहब्बत के दावे में सच्चा, वो है हकीकत में। तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो हकीकी मोहब्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे अंदर पैदा हो जाए कि जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तस्दीक हासिल हो, हम हकीकी मानों में मोमिन बन जाए, हकीकी मानों में इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाए, तो फिर हम इस बात के लायक होंगे कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत को ये कहलाने के हकदार होंगे। और इसमें जो उखरिजत लिन्नास कहा गया ना, उसकी जरूरत है, इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है दोस्तों। लोगों के लिए फायदेमंद होना, लोगों के लिए बिना लिहाज मजहब और मिल्लत हर किसी के लिए फायदेमंद बन के हमें रहना है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, खास तौर से इस मुल्क के अंदर जहाँ हर कदम पर मुखालिफतें और गैरों की अक्सरियत है यहाँ पर, और हम इस दरमियान में हम अपने आप को रखते हैं। ऐसी सूरत में हमें जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम वाला हकीकी मानों में उस्वा अपनाना होगा। वो क्या था? खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है कि जो लोगों को फायदा पहुंचाए, मुफीद बनना होगा। मुफीद, अगर आप पढ़ाई करने में माहिर हैं, आप ट्यूशन दे सकते हैं, दीजिए, अच्छे उस्ताद बन जाइए। उस्ताद बनके एक होता है कि नॉर्मली जो है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करना, और एक होता है हकीकी मानों में लोगों को कुछ देने के लिए, सिखाने के लिए बैठने वाला उस्ताद, वो एक अलग ही होता है। और जो अपने फर्ज है उससे कुछ एक्स्ट्रा करना, और ऐसे लोगों को भी फायदा पहुंचाना जो माली एतबार से जिनकी इस्तिताअत नहीं। आप लॉयर हैं, लोगों से फीस लेते हैं, दीजिए जायज तरीके से, लेकिन अगर कुछ जरूरतमंद आ जाएं उनकी भी मदद करने को अपना फरीजा समझें, नाफिअ बन जाएं। और अगर आप जो है कोई डॉक्टर हैं तो कुछ ऐसे मरीजों का भी इलाज कीजिए, आप फीस लीजिए बराबर, मोतदिल लीजिए। और फिर अगर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनका भी इलाज कीजिए, मुफीद बन जाइए लोगों के लिए। और उसमें ये भी मत देखिए कि मुसलमान ही या गैर मुस्लिम, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के काबिल अल्लाह ने बनाया है, तो उन जरूरतों को पूरा करने की काबिल अपने आप को साबित करिए। इस तरीके से इस मुल्क के अंदर, इन हालात के अंदर हम जो है बेहतरीन उम्मत होने का जो है उसको साबित कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं उसका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो गुजारिशात की गई है इस पर मुझे भी, आपको भी और पूरी उम्मत को अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।